Welcome guys to lecture number 9 of straight lines. Okay, so आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? If you remember in locus हम लोग ने एक चीज़ देखी थी, अगर याद होगा तो आपको याद है हम लोग हर लास्ट सम पे ये लिखते थे इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस, और मैंने आपको ये कहा था कि अगर आप कोई भी इक्वेशन को देखोगे सो यू कैन आइडेंटिफाई उसका नाम, जैसे कि वो स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है या हाइपरबोला है, सबका एक फॉर्म है। वैसे ही स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वो है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। आई रिपीट, क्या बोला मैंने? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सो व्हाट इज जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब मैं by को इधर ही रखता हूँ, माइनस ax माइनस c, y को और अकेला करता हूँ, याद है वो इंटरसेप्ट फॉर्म। अब मैं कंपेयर करता हूँ, y is equal to mx plus c. So what is m? Coefficient of x minus a by b. और ये m होता क्या है बच्चों? स्लोप ऑफ लाइन। सो कैन आई से इसका स्लोप होगा माइनस a by b, माइनस a by b, इसका स्लोप होगा माइनस a by b। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, x इंटरसेप्ट के लिए y 0 होता है बेटा, इसमें y 0 डाला तो c उधर जाएगा तो माइनस c होगा, तो वैल्यू ऑफ x विल बी माइनस c बाई a, एंड y इंटरसेप्ट के लिए x इज 0, तो मेरा आंसर होगा माइनस c बाई a। So moral of the story is you need to remember slope, which is minus a by b, x intercept minus c by a, y intercept minus c by b. I hope you understood. अच्छा clear है? I repeat, m is minus a by b, x is minus c by a, y is minus c by b. Remember, whenever a line passes through origin नहीं, शून्य शून्य, तो c is 0। देखो कैसे, x 0 y 0, तो c भी 0 ही हुआ ना, तो therefore equation will be ax plus by equal to 0, ax plus by equal to 0। I hope you understood. एक सम लेते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। गिवन इक्वेशन, एक्सरसाइज 5.4, पहला सम, गिवन इक्वेशन, बाकी क्या आप करो, 2x माइनस 3y और अदर 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। कैन आई से कंपेयरिंग विद ax plus by plus c equal to 0. What is the value of a? 2, b 3, c minus 6। तो अब बच्चों स्लोप क्या होगा इसका? According to the formula, minus a by b minus 2 by 3. What is x intercept? Formula minus c by a, minus c minus 6 है और a 2 है, the answer is 3। and what is y intercept? so the answer is 2। बच्चों इजी है ना, बहुत सरल तरीके से आंसर आ गया। अब इसका फर्स्ट मैंने किया है, फर्स्ट का सेकंड
and first का third is your DIY. DIY पे याद है ना? Do it yourself. Easy. So you need to remember the formula, which is nothing but m is minus a by b, x intercept is minus c by a, y intercept is minus c by b. Again, I repeat, m is minus a by b, which is slope of a line. X intercept is minus c by a, and y intercept is minus c by b. I hope this is clear. Done? All right. Let's see the next sum. Now the sum says. Question 2. इसी के ऊपर सम्स करेंगे अभी. So what is general equation of straight line? ax plus by plus c equal to 0. समझा मेरे पुराने पिक्चर के हीरो. Alright, proceeding to the next sum. Let's talk about next sum. Question 2 का first. उन लोग ने बोला है get the equation in the form ax और एक जनरल फॉर्म में लिखा है. स्टार्ट करें. पहला पार्ट y is equal to 2x minus 4. Y is equal to 2x minus 4. So 2x minus y minus 4 equal to 0 is of the form. कौन सा फॉर्म है? ax by. I hope this is clear. That's it. ये given equation था. इसका हम लोगों ने डन. नेक्स्ट सेकेंड x by 2 y by 4. I hope this is clear. So can I say 4x plus 2y is equal to 8. 2x plus y minus 4 equal to 0 is of the form. कौन सा फॉर्म? ax plus by plus c equal to 0. Next, sum number 3. x by 3 y by 2 equal to 0. 2x minus 3y ये मल्टीप्लाई के सामने चला जाए is of the form. बोलो ax plus by plus c equal to 0 and the sum is over. Easy बच्चों. चलो अब ये MCQs में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. गिवन इक्वेशंस. दो इक्वेशन दिए है बच्चा. पहला इक्वेशन दिया है x minus 2y minus 7 equal to 0 and 2x minus 4y plus 15. तो दोनों के स्लोप निकाले थे. Therefore slope is minus a by b. They are respective slope will be m1 इसका slope which is minus 1 upon minus 2 which is half and m2 minus 2 upon minus 4 again half. Can I say since m1 is equal to m2 lines are parallel. So in this question what they have given was, what they have given is two equations and we need to prove whether they are parallel or not. So I have shown that दोनों parallel है. अब next समय perpendicular के बारे में बात की है.
एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो क्या होता है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके लाओगे तो आंसर आ जाएगा। बट फिलहाल के लिए पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट समझा, दोनों के स्लोप्स है, एक m1 है एक m2 है, मल्टीप्लाई किया काम हो गया। समझा बच्चों? नेक्स्ट थर्ड सम देखिए क्या मिला है। फोर्थ सम उन लोग ने दिया है, शो दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर एंड फाइंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो गिवन इक्वेशन, पहला 2x और अदर x minus 2y plus 7 equal to 0, sorry, and 2x plus y, they are respective slopes, जो होगा माइनस ए बाई बी m1 r माइनस, ये माइनस a1 है इधर और इधर है -2, तो दिस इज हाफ, एंड m2 माइनस a2 है और ये 1 है, सो -2। तो नाउ कैन आई से m1 into m2, half, the answer is -1, therefore lines are perpendicular, lines are perpendicular, यानी ये दोनों lines परपेंडिकुलर है। तो इनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो कैसे लाएंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। नाउ x minus 2y is equal to 7, 2x plus y is equal to -1, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, x minus 2y is equal to 7, 4x plus 2y minus 2, adding 5x is equal to 5, x is 1, x को इसमें डालेंगे, पापा पुट x is equal to 1 in equation 1, इसको equation 1, so 1 minus 2y, so minus 2y, y is minus, so इनका पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा 1, आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। दोनों के अलग अलग स्लोप निकालिए, दोनों के अलग अलग स्लोप निकालिए, मल्टीप्लाई करके देखा, अगर इक्वल आता तो पैरेलल, मल्टीप्लाई किया, इसके अलावा कुछ होगा नहीं, इसके अलावा कुछ होगा तो देखेंगे उसका क्या है, बट फिलहाल के लिए ये। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। आगे बढ़ी, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बोलते हैं, इफ द लाइन 3x plus 4y plus p makes an a triangle of area 24 square units with the coordinate axis, then find the value of p। अरे बच्चों बहुत सिंपल है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, 3x plus 4y is equal to p, मेक्स एन एंगल ऑफ एरिया। बच्चों मुझे एक बात बता, ऐसा होगा ये ओरिजिन है, ये वो लाइन है 3x। मुझे एक बात बताओ, इफ x is 0
then y will be p by 4 and y is 0, then x will be, so एक पॉइंट आएगा 0, p by 4, दूसरा पॉइंट आएगा p by 3, 0. सो ये हो गया और ये हो गया. क्लियर है बच्चों? अब आपको नहीं लगता ये एक्सिस वाले? सो कैन आई से लेट लाइन कट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट्स ए एंड बी. तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ए और बी पे कट किया. अब आपको नहीं लगता ये बेस होगा और ये हाइट होगा? सो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB हाफ बेस इनटू हाइट. सो ये 24 है हाफ. व्हाट इज बेस? कैन आई से इसका और इसका डिस्टेंस फॉर्मूला डाला तो ये यहाँ से यहाँ तक p/3 होगा और ये होगा, और ऐसा नाम लिख लो OB और OA. अब ये हो जाएगा 48 p/3. सो p square is 48 into 12. 48 into 12. p is root of, बच्चों क्लियर है? Therefore p is root of 576. p is plus minus 20. Easy है बच्चों? डन. आई होप दिस इज क्लियर. x को 0 डाला y मिला, y को 0 डाला x मिला, दोनों पॉइंट्स रेडी हो गए. बेस. इसका एक और तरीका है, वो सिखाता हूँ. इक्वेशन क्या है? इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आओ. सो x कौन होगा, y कौन होगा? आपको द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. लेंथ यानी यहां से यहां, यहां से यहां, ये पूरा लाइन इसका लेंथ. एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ AB. क्योंकि A कौन है? ये तुम्हारा A है और ये तुम्हारा B है. चाहिए तो देख लो सॉल्व करके. एरिया 24 था, हाफ A कौन है और ये, सो P स्क्वायर. सो व्हाट इज P? सेम आ रहा है ना? सो ये शॉर्टकट है JEE का, तुम लोग यूज कर सकते हो. डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में नीचे जो होता है वो A होता है और दूसरा नीचे होता है B. उसका लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मिलता है फॉर्मूला से रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वेयर a इज x इंटरसेप्ट एंड b इज y इंटरसेप्ट. और यहाँ एरिया का फॉर्मूला है हाफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ इंटू x इंटरसेप्ट इंटू y इंटरसेप्ट एंड द सम इज ओवर. बट वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट होना चाहिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस को वो कट होना चाहिए. याद रहेगा बच्चों? प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस. Can I learn? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आओ. x इंटरसेप्ट मिल गया, y इंटरसेप्ट मिल गया, फॉर्मूला यूज कर लो, काम हो जाएगा. नेक्स्ट, find the coordinates of foot of perpendicular drawn from point P or point A. Okay. Sum number 6. समझते इस सम को. एक पॉइंट है A -2,3 और इसका मुझे यहां तक फुट निकालना
और इक्वेशन क्या दिया, 3x माइनस वाई थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या ना, इसे अगर मैं इसका इक्वेशन ले आता हूँ तो दोनों को अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँगा तो ये मिलेगा। सही बोल रहा हूँ? तो बताइए, गिवन इक्वेशन, व्हाट इज गिवन इक्वेशन? तो उसका स्लोप क्या होगा बेटा? माइनस, कैन आई से दिस इज O or either P? Let P be foot of perpendicular. So therefore slope of line AP will be, उल्टा करके साइन चेंज, तो ये -1/3, इसका उल्टा 1/3 होगा, साइन चेंज, सिंस they are perpendicular to each. I hope you are understood. लिखते जाओ अपने ओन वर्ड्स में रीजंस के साथ। तो मुझे स्लोप मिल गया और पॉइंट मिल गया। तो स्लोप क्या है एंड पॉइंट है, तो बाय स्लोप पॉइंट, व्हाट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म? y minus y1 is equal to m y minus 3 minus 1/3 x plus 2, 3y minus 9 minus x minus 2. So now this will be x plus 3y is equal to 7. This is your equation 2. तो मुझे ये इसका इक्वेशन आ गया और इसको मैं इक्वेशन 1 देता हूँ। सॉल्विंग equation 1 and equation 2, we get, let's say what we get, 3x minus y is equal to 1, 3x minus y is equal to 1, फिर x plus 3y, मैं क्रेमर्स रूल ले लूँ, देखते हैं, डेल्टा 3 minus 1 1 3, इसको सॉल्व करूंगा तो 9 plus 1 10, डेल्टा x इस जगह पे कांस्टेंट आएगा 1 7, सो 3, ये भी 10 हो गया, डेल्टा y इस जगह पे कांस्टेंट आएगा 21 minus 1, सो बाय क्रेमर्स रूल आता है ना, x is delta x upon delta, y is delta y upon delta. So x is 1 and y is 2. Therefore, foot of perpendicular is 1, 2. बच्चों क्लियर है? Is 1, 2. I hope this is clear. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज मुझे ये निकालना है। इसके बहुत सारे तरीके हैं बच्चों, आगे जाओगे ना तो और चीज़ें सिंपल हो जाएगी, बट फिलहाल के लिए ये स्टेप, मेरे को पता है ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो मेरे को इसका स्लोप पता है फॉर्मूले से, जो थोड़ी देर पहले डिराइव किया, उसका उल्टा और साइन चेंज किया तो ये मिल जाएगा इसका स्लोप मिल गया, पॉइंट पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन मिला, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, वी गॉट द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। यस, next comes your favorite sum, बहुत 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 फेवरेट सम है तुम्हारा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर, याद है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर, देखिए बच्चों, सो 7 सम, ट्रायंगल बना लेते हैं, A B C, -2, 3, 6, -1 and 4, 3।
अच्छा अब सर्कम सेंटर के लिए पहले याद है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. स्टार्ट करो. लेट ओके स्लोप निकालो BC का. स्लोप ऑफ BC y2 minus y1 upon so 3 plus 1 upon 4 minus 6. 4 by minus 2 or rather minus 2. So therefore slope of perpendicular bisector will be जो हम m ले लेंगे इसका उल्टा और साइन चेंज. अब मिड पॉइंट ढूंढेंगे. मिड पॉइंट D will be x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2. So D मिल जाएगा 6 plus 4 10 by 2 minus 1 3. So D आ गया. बच्चों क्लियर है. अब हमारे पास D आ गया 5,1 और स्लोप है हाफ बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म. व्हाट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म? y minus y1 is equal to m x minus x1. y minus 1 half so 2y minus 2 x minus 2y is equal to 3. ये इक्वेशन 1 आ गया. बच्चों की इक्वेशन क्या आया 1 x minus 2y is equal to 3. स्लोप उल्टा साइन चेंज. अब सिमिलरली विल फाइंड फॉर E. Similarly we find for side AC. स्टार्ट करें. तो स्लोप ऑफ AC डायरेक्ट. अब फॉर्मूला नहीं डालना. AC तो 3 minus 3 0. अरे ये तो 0 ही आ गया. तो इसका उल्टा करके साइन चेंज में 0 ही होने वाला है. तो छोड़ दो इसको फिलहाल के लिए. राइट. देयरफॉर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर -1/0. इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं. पता है ये नॉट डिफाइंड है. ऑब्वियस सी बात है ये 0 है. यानी इसका मतलब स्लोप अगर 0 है ना, स्लोप अगर 0 है तो ये इनफाइनाइट में जाएगा. ये 0 चला x में इक्वेशन आएगा. किस में इक्वेशन आएगा? x में. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है. फिलहाल के लिए इसको ऐसे रखो. माइन उसका उल्टा और साइन. अब देखो तुम लोग को समझेगा. इसका मिड पॉइंट निकालो. मिड पॉइंट ऑफ क्या होगा? दिस प्लस दिस -2 plus 4 upon 2 एंड 3 plus 3 upon 2. तो इसका आंसर होगा 1,3. सो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म. व्हाट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म? y minus y1 is equal to m. तो y minus 3 is equal to -1 upon 0 x minus 1. बच्चों ये गया. अब आपको समझा मैंने क्या बोला? x में इक्वेशन रहेगा. जब भी इसका उल्टा साइन चेंज इन नॉट डिफाइंड है तो ये नॉट डिफाइंड है. तो इसका मतलब माय इक्वेशन विल बी इन x. सो व्हाट इज माय आंसर इक्वेशन? x उधर गया तो x is equal to 1 आएगा. दिस इज इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC. यानी इसका इक्वेशन. अब कहने से इसको और इसको सॉल्व करेंगे. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. देयरफॉर x को 1 इसमें डाल देते हैं तो 1 इज -2y. सो -2y, y is -. So therefore perpendicular bisector meets at circumcenter. Therefore circumcenter is 1, -1. बच्चों समझा? हमेशा याद रखना अगर स्लोप 0 है तो इक्वेशन y में होगा. एंड अगर स्लोप नॉट डिफाइंड है
सो इक्वेशन होगा इन x, ये याद रखो, समझ रहे हैं? स्लोप 0 है तो इक्वेशन y में होगा, और स्लोप नॉट डिफाइंड है, चाहिए तो यहाँ लिख लो नॉट डिफाइंड, सो इक्वेशन x में होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। नहीं समझा? ये लिखता नहीं है, सीधा x में इक्वेशन आता है, पर ठीक है तुम्हारी तसल्ली के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड। सो दोनों का, पहले इसका और फिर इसका, या फिर आप इसका ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, अभी x आ गया तो x को इसमें डालोगे तो y हो गया ना, साइमल्टेनियस वही होता है, या सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है बच्चों? इक्वेशंस एंड देन सॉल्व, गेट द आंसर। सॉल्विंग टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली विल गेट। अब नेक्स्ट 8th सम डू इट योरसेल्फ है, फिर मैं करूँ एल्टीट्यूड वाला, चलो मैं कर दूंगा, बट आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस सम। एट सम इज योर होमवर्क। नहीं, अब मैं सब नहीं करूँगा, मिसलिनियस ले लेंगे। एट सम इज योर होमवर्क। इसमें ऑर्थो सेंटर ढूंढना है, तो इसका मतलब तुम लोग को एटीट्यूड निकाल के सॉल्व करना है। बच्चों याद रहेगा ना? We'll stop here for the day. We'll continue with few more concepts based on straight line and continue in the next class. Bye guys, take care, see you soon.